Hello, good evening to all of you. My name is Mr. Raul Kumar. I am your maths teacher. Today I want to teach some topic of mathematics. The topic name is the quadratic equation. This topic means quadratic equation belongs from the algebra. This topic belongs from the algebra. Sir, ये algebra का topic है quadratic equation. This is very important topic in the JEE Maths because the some question asked from the this topic means quadratic equation. तो आज हम बात करने वाले सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सर व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस। सर यू नो अबाउट द जनरल इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ ए quadratic equation. General equation of a quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, where a does not equal to 0, and a, b, c are real numbers. Sir, the general form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. This is the general form of quadratic equation. सर आपको पता है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर एक ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है. A polynomial equation whose degree is 2 is called the quadratic equation. फिर ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. आप यू सी हियर दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square bx plus c, where a b c are the real number and the restriction here the sir a does not equal to 0. sir what is meaning of this? sir why a does not equal to 0? सर a 0 क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे a को मैंने 0 यहाँ पे पुट किया, अगर हमने यहाँ पे जो अगर a equal to b put the a equal to 0, then you get here the sir this term is eliminated. You only get here the sir 0 into x square plus bx plus c equal to 0 means this term is sir 0 into something क्या होता है? 0 होता है. You get 0 plus bx plus c equal to 0. You get bx plus c equal to 0. This is the linear equation. This is the linear equation. This is not a quadratic equation. What you see, sir? Sir, bx plus c equal to 0 is a linear equation, not a quadratic equation. So you cannot say, sir, this is the quadratic equation because the degree of this equation is the 1. Because this is the linear, na? The power of the variable here, the x equal to 1. सर यहाँ पर x की वेरिएबल कितना है? x वेरिएबल हमारा है, इसकी डिग्री कितनी है? 1 है सर. सर अगर किसी वेरिएबल्स में जो अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, अगर उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो वेरिएबल्स की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है सर? उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है. तो यू सी हियर फ्रॉम द सर x इज द वेरिएबल्स whose degree is 1 and here the degree is 0. तो 1 and 0 sir 1 is the highest degree, highest exponent. Due to which we can say that bx plus c equal to 0 is the linear equation, not a quadratic equation. So this is the restriction. Sir, this equation you only say that sir this is a quadratic equation if and only if a does not equal to 0. अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ भी अगर है, तो then you can say that sir this equation is the quadratic equation because sir this term x square is present, then you can say that sir this equation is the quadratic equation. Because sir the name is referred to the quadratic means degree 2. The variables whose highest exponent is the 2. You see here the variables x exponent 2, variables x exponent 1, variables in upside but you can write here the x to the power 0, the power 2 power 1 power 0. So in the 2 1 0 you see that 2 is the highest power among them. The due to which we can say that this equation has the highest exponents 2, due to which this is called the quadratic equation.
अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी वेरिएबल्स की पावर अगर दो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर सबसे पहले हम जानते हैं सर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये इसकी पहले क्या था? सर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। अगर हम जो इसको जीरो के इक्वल न करें, when b does not set equal to zero, अगर हम जो इस एक्सप्रेशन को जो है अगर हम जीरो के इक्वल सेट ना करें, अगर मैं सिंपली यहाँ बोले सर दिस फंक्शन fx इक्वल टू fx function of x equal to ax square plus bx plus c, then this is called the quadratic expression because this expression contain the degree 2. But sir we cannot say the equation. Equation means the expression set equal to the zero. Any expression whose does contain the equal to sign, then you can say that expression is called the equation. उसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स में अगर इक्वल टू साइन आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया मतलब ऐसा साइन आपको दिख जाए, इसमें क्या टू साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, RHS and LHS both are the equal. This equal to this. When the two algebraic expression have the equal value, due to which we can say that this is called the equation. अगर दो एक्सप्रेशन की वैल्यू का अगर एक बराबर है, इक्वल है, तो यू कैन से दैट दिस इज इक्वेशन। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बात किया, अभी मैं दोबारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करने वाला हूँ, उसके बारे में वन बाय वन करके जानने वाला हूँ कि क्या होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला सर अगर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो ax स्क्वायर प्लस bx plus c equal to 0. You see that the value of this becomes equal to the 0. Means this and this are equal. जो इसकी वैल्यू ना, जो इसकी वैल्यू वो 0 के बराबर है। अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन हमारा है, दूसरा मेरा है, इसकी वैल्यू क्या सेम है। When the two expressions have the same value and equal value, then we can say that expression is called the equation. इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन always contain the equal to sign. अगर इक्वेशन है उसमें क्या आएगा सर? उसमें इक्वल टू साइन हमेशा आने वाला, वो क्लियर है हमारा। ए तो हम बात कर रहे हैं सर कि व्हाट इज दिस इक्वेशन सर? दिस इक्वेशन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन because this is the polynomials, because the degree of this polynomial are non mean whole number, non negative integer means the whole number power, the power is the 2, power is 1, power is 0. You can say that a b c are the constant, this is the real number, the value of a does not equal to 0. सर यहाँ पे जो है a की वैल्यू हमारी जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकती हमारी। अगर इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तभी बोल पाते हैं, एक कहाँ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे कंडीशन है कि सर अगर a की वैल्यू 0 नहीं है, when the value of a does not equal to 0, then you can say that this is called the quadratic equation because quadratic equation has a degree 2. अगर डिग्री में 2 की बात कर रहा हूँ 2, ये a के साथ में आ गया, ये दोनों एक साथ हमारे आ चुके हैं। अगर मैंने इसको 0 किया, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब ये हमारा टर्म गायब हो जाएगा। तो जैसे हमारा टर्म जो गायब होना पे, तो देन यू कैन से दैट सर दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मेरा टर्म ये गायब होगा पे, तो क्या बचेगा सर? ओनली ई रिमेन्स हियर द bx plus c equal to 0. दिस इज द लीनियर इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बात करने वाले सर ठीक है, तो हमारा हो गया ठीक है, ये हमारा दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो राइट हियर द सर व्हाट इज दिस सर? सर दिस इज द जनरल quadratic equation a b c are real number। यहां पे हमारे a b c क्या है? रियल नंबर्स हमारे, मतलब ये नंबर हमारे ऐसे हैं जो हमसे हम जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर हमारे जो है नेगेटिव इन्फिनिटी से है, ये नंबर हमारे जो है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाने वाले हैं। मतलब इसका जो है वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे a b c की जो वैल्यू हमारी होगी वो रियल नंबर होती है। रियल नंबर बोले तो क्या व्हाट इट मींस नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस मीन कि ऑल द वैल्यू ऑफ a b c लाई एट द नंबर लाइन। हो गया? अब सर जानने वाले यहाँ पे सर यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हमारा है, ठीक है। तो सर इसमें यहाँ पे x की तो हमें क्या करना होता है सर? इक्वेशन है, तो इक्वेशन ऑलवेज गिव द सॉल्यूशन।
अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है तो हमें क्या देता है, सॉल्यूशन देता है। तो दिस इज द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, दिस गिव्स द सॉल्यूशन। मतलब हमें जिसमें सॉल्यूशन हमको ये देता है कि सर यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हु सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। सर x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी। अगर आपने x की वैल्यू कुछ भी लिया, अगर आपने इसमें पुट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। अगर जो भी x की वैल्यू हमारी आती है वही क्या होती है, सर इस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन कहलाता है। तो हमको इसमें पता करना होता है सर यहाँ पे x की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x which satisfy this equation, means the value of left hand side becomes equal to the right hand side, कि दोनों की वैल्यू क्या होनी इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ बात करना है सर इसके जो कितने रूट हो सकते हैं यहाँ पे, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं यहाँ पे। ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पे x हमारे दिया गया है तो इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, माने x के कितने मान हो सकते हैं जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सर अगर जो है कोई भी मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो सर उसकी जो है सॉल्यूशन कितना हो सकता है, एटमोस्ट कितना जो है उसका जो एटमोस्ट मैक्सिमम जो कितना सॉल्यूशन हो सकता है, मतलब चाहे रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, रेशनल हो, इरेशनल कुछ भी नंबर है वो कितना पॉसिबिलिटी उसकी है जो है। तो आपको बता दें मुझे अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन हमको है, कोई भी एनीथिंग, तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो होता है ना सॉल्यूशन कितना हो सकता है, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो कोई भी, तो जो है तो वो डिपेंड करता है सर उस जो है उस इक्वेशन के जो है डिग्री पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी इक्वेशन का जो डिग्री जितनी होगी ना, अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री जितनी होती है उसका जो उतने ही क्या आते हैं सॉल्यूशन आते हैं, उसके उतने ही रूट आते हैं। तो यू सी हियर द सर ax square plus bx plus c equal to 0, you see the sir this is the quadratic equation, the degree of this equation is the degree of this equation, degree of ax square plus bx plus c equal to 0 is 2। सर मैं बात करता हूं सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है सर इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि वेरिएबल जो है सबसे अधिक पावर कितना रखता है, 2 रखता है। The variable x contain the highest power 2 due to which this is the quadratic equation। तो आपको बता दें यहाँ पे अगर इसकी डिग्री 2 है ना तो इट हैव ओनली द 2 सॉल्यूशन, एट मोस्ट 2 सॉल्यूशन यहाँ पे कंटेन करने वाला यहाँ पर सर इसकी जो वैल्यूज है x की वैल्यूज है इसके सॉल्यूशन जो है ना 2 से ज्यादा कभी नहीं आ सकते हमारे, इट इज नेवर पॉसिबल। द एटमोस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज द ओनली 2, the two solution is the real number और कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर। सर यहाँ पे x की जो वैल्यू हमारी होगी वो 2 ही आ सकती है हमारी, 2 या दोनों का रियल आ सकती है या रियल नहीं तो कॉम्प्लेक्स आ सकती है हमारी। तो मतलब 2 से ज्यादा इसकी जो है रूट इम्पॉसिबल है, सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है। तो हमने बताना चाहता हूं पे सर कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हमको गिवन है तो सर उसकी जितनी डिग्री होती है ना, उसकी जितनी डिग्री होती है वही जो है उतनी जो है उसके सॉल्यूशन होते हैं, चाहे वो रियल सॉल्यूशन हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन हो, मींस इमेजिनरी सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे डिग्री हमारी 2 है तो सर इसके जो है 2 रूट आने वाले हैं, 2 सॉल्यूशंस के आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे x की जो है 2 वैल्यू ऐसी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आइए हम देखते हैं यहाँ पे सर कि x की हम वैल्यू को फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू सेटिस्फाई कैसे करते हैं। तो मैं आपको जो है एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कि सर अगर हम x की वैल्यू को निकालें, मतलब x की वैल्यू क्या होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मींस द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड, हाउ इट इज पॉसिबल, यू सी फ्रॉम द गिवन एग्जांपल। तो मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं मुझे you take the example here sir, example is the मैंने एग्जांपल यहां पर लिया x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो you find the value of x which satisfy the given equation।
कि मुझे यहाँ पे x की वो वैल्यू पता करनी है, मतलब x की वो कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मींस इस इक्वेशन को जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है इसके राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, वो हमारी x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए यहाँ पे। तो आइए हम देख बताते हैं मुझे कि सर यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, तो सर इसके जो एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं अगर, चाहे वो रियल हो सकता है चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मींस इमेजिनरी रूट हो सकता है। आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं कि x इक्वल टू we put here x equal to 2, अगर मैं मुझे चेक करना है सर क्या x को 2 जो है इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, हमको चेक करना पे x equal to 2 is a solution of this equation, is a solution of above equation, क्या यह से है x equal to 2 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं है, हमको चेक करना है, हमको ये चेक करना है क्या इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो you put here na, you put here in this value, you put this value x equal to 2 in this equation, you take the equation number 1, put the value of x equal to 4, x equal to 2 in equation 1, आप इसमें इसको पुट कर दीजिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है, ये मेरा क्लियर हो जाता है आंसर कि सर ये हमारा जो है इसका सॉल्यूशन होगा हमारा। तो हम इसे पुट करते हैं यहाँ पर, तो 2 स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स 2 प्लस 10 इक्वल टू 0, you solve it, thus simplified 2 to the power 2 means 4 minus 7 2 is 14 plus 10 equal to 0. You see here 4 and 10 are both are the same sign. You add this 4 and 10 because both are the positive in sign. You add the 14 minus 14 equal to 0. You subtract 14 minus 14, you get 0 equal to 0. This is the true. Left hand side becomes equal to the right hand side. This means that LHS equal to the RHS. This is true because left hand side becomes equal to the right hand side. It means that sir x equal to 2 is the solution of this equation. मतलब x बराबर 2 क्या है सर, x equal to 2 हमारा जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब यह x equal to 2 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपने इस x equal to 2 को जो है इस इक्वेशन में पुट किया है तो यह जो है लेफ्ट हैंड साइड को जो है राइट हैंड साइड के इक्वल कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू को 0 कर दे रहा है। ओके, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं उसको जो सर इसका भी एक और रूट हो सकता है, वो क्या होगा सर 5 आएगा। अगर आपने इसमें इस इक्वेशन में अगर x equal to 5 पुट करते हैं, you put x equal to 5, x equal to 5, this is also satisfy this equation. ये क्या करेगा सर, ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसमें देयर इज नो डाउट। यू चेक इट, दिस यू चेक इट सर, x equal to 5 is also a solution of this equation. ओके, अब हम सर मुझे पता करना है कि सर अगर मेरे पास कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मुझे उसका निकालना है कि सर हाउ टू फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मुझे जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है अगर सॉल्व करना है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो मेरे पास मेथड क्या क्या होगा जिसकी हेल्प से मुझे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, वो मेरे पास मेथड क्या क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम जो है एक सबसे सिंपलेस्ट सबसे कॉमन जो मेथड होता है जिसे हम सब जानते हैं उसका नाम होता है फैक्टर मेथड होता है, फैक्टरिंग मेथड। मतलब आप जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जो है फैक्टर करके जो है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के रूप में जो है आप फाइंड करके यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करते हैं यहाँ पे। अब आप वहां से जो है इजीली जो है उससे गेट कर सकते हैं आप सर यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो गया है। ठीक है, आइए देखते हैं सर, देखते हैं कि जो है हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x of a quadratic equation by the factoring method, कि हम जो फैक्टराइज करके जो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके हम x की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। आइए हम दिखाते हैं आपको जो एग्जांपल के हेल्प से।
मेथड methods 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 to solve a quadratic equation quadratic equation quadratic equation अगर मेरे पास से कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ना माने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में गिवन है, तो हाउ टू सॉल्व दिस एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो विच मेथड, हाउ मेनी मेथड टू अप्लाई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मेरे पास कुछ मेथड्स है जिसकी हेल्प से मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उस मेथड में हमारा जो फर्स्ट हमारा मेथड है जिसका नाम हमारा है, जिसका नाम मेरे पास है फैक्टरिंग मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन 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 मेथड, और बोले तो फैक्टरिंग मेथड, फैक्टरिंग मेथड। इसमें क्या बोले सर, आपको पता है कि फैक्टर मेथड क्या होता है। फैक्टर मेथड का मतलब होता है कि आप जो है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जो है टू जो है लीनियर फैक्टर के जो है प्रोडक्ट के रूप में राइट करें। यहाँ पे यू राइट द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर, मतलब आप इसे जो है दो जो है लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में से राइट करेंगे और आप उसको जो है जीरो के इक्वल इक्वेट करके आप एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ मेरा यहाँ पे सर अगर हमारा जो है अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का गिवन है, तो हम इसे जो है इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं यहाँ पे कि सर प्रोडक्ट ऑफ इसे जो है एक्स माइनस अल्फा इनटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। बिकॉज सर हियर द डिग्री रिड्यूस, डिग्री इज 2 हियर डिग्री इज 1, माने कि दिस इज reduced to the product of two linear factor x minus alpha into x minus beta. This is the linear expression, product of two linear expression x minus alpha into x minus beta. So you convert this into this, then you equate the sir product of two number equal to zero. It means that sir either this equal to zero or this equal to zero. अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई कर जीरो होता है इसका मतलब क्या होता है सर, या तो ए नंबर जीरो होता है या तो सी जीरो होता है। जैसे यहाँ पे बोलूं मैं आपको, अगर a इंटू जो है b इक्वल टू जीरो होता है, मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूं सर, अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें अगर मुझे जीरो मिले यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या करता है सर, इंडिकेट करता है या तो a जीरो है या तो a जीरो है, माने आइदर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो और बोथ जीरो, both a and b equal to 0. This is the zero product rule. It says that the product of two number equal to 0, it means that either first number is 0 or second number is 0 or both 0. तो मैंने यहाँ बोला था, जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला सर 2 into a equal to 0 होगा, हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिला, 0 मिला। The product of 2 into a, sir this is not equal to 0 ना, ये 2 हमारे 0 के इक्वल नहीं है। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें मुझे 0 मिला, इसका मतलब या तो a 0 होगा या तो a 0 होगा। सर हमारा ये तो 0 नहीं हमारा है, it never be 0 ना, it is 2, it is a positive value, but it is clear that here a equal to 0। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा सर, हमारा a की वैल्यू क्या है, 0 आ गया, एक क्लियर कर देंगे। तो हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं मुझे 0 मिलता है, इसका मतलब होता है जो फर्स्ट नंबर 0 है या तो सेकंड नंबर 0 है या दोनों नंबर 0 हो सकते हैं। ठीक है, आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। फैक्टरिंग मेथड कहता है कि आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है आप जो प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर के रूप में लिखना होता है। आपको इसको जो है प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर के रूप में आपको राइट करना होता है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा 0 के इक्वल आता है तो या तो a 0 होगा या तो a 0 होगा। It means that either x minus alpha equal to 0 or x minus beta equal to 0।
अगर मैं इसको यहाँ से इसको मैच करूँ यहाँ से तो मुझे क्या मिलेगा सर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू जीरो, इट मींस दैट सर आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ से क्या करना है सर, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यू ट्रांसपोज द दिस वैल्यू इनटू द राइट हैंड साइड, x इक्वल टू अल्फा बिकॉज़ here the negative sign है, you transpose on the right hand side the sign is changed altered negative to positive or x equal to beta. This is the x equal to alpha and x equal to beta are the two solution of this quadratic equation. ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको इसको जो है प्रोडक्ट ऑफ जो है टू लीनियर फैक्टर के रूप में राइट करना है और उसको जो है एक एक को जो है जीरो के इक्वल करके आपको यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। आइए हम जो इस कंसेप्ट को हम जो है एक एग्जांपल के माध्यम से करते हैं और देखते हैं इसका हम आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए तो हम यहाँ पे करने वाले हैं सर, यू फाइंड आउट द एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, solve for x by factoring method। आपको इसे जो है x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बाय द फैक्टरिंग मेथड। आपको इसको जो है फैक्टर मेथड से इस इक्वेशन को जो है x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए हम देखते हैं क्या करते हैं इसमें। मेरे पास इसमें कंसेप्ट क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी मैं इसको होल्ड करता हूं। मुझे आपको इसमें करना क्या होता है ना, आपको इसमें करना होता है कि अगर हमारे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दिस इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म। here c is the constant term। तो अगर आपको जो है प्रोडक्ट ऑफ जो टू लीनियर फैक्टर के रूप में राइट करना होता है तो क्या करना होता है उसमें, आपको इस कांस्टेंट टर्म को जो है इस को लीडिंग कोएफिशिएंट में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना होता है। आपको ac की वैल्यू को फाइंड करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म टू द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस लीडिंग कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना। उसके बाद क्या करना आपको ना, अब आपको जैसे जो है दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिसको हम ऐड कर दें तो मुझे ये टर्म हमको मिल जाए। तो मुझे इसको जो दो ऐसे फैक्टर करना है, मुझे इसका दो ऐसे फैक्टर करना है कि अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मुझे b हमको मिल जाए। ठीक है, अब डिपेंड यहाँ पे करता है सर कि मुझे कब ऐड करना है और कब सब्ट्रैक्ट करना है, तो डिपेंड जो इसके साइन पे करता है। जो कांस्टेंट टर्म के जो है साइन है उस पर डिपेंड करता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ पे सर मैंने इसमें क्या बोला, हमें क्या करना है इसमें सर, हमको ए को जो है यहाँ पर कुछ नहीं मतलब यहाँ पर 1 है, तो मुझे कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 1 है और ये हमारा 1 क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट है। तो मुझे 1 को जो है इस लीडिंग कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना होता है, मींस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब इसको जो है मुझे इसके दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं कि हम जिसको ऐड कर दें। अगर सिंबल यहाँ पर प्लस है तो मुझे क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। सिंबल प्लस है मतलब यहाँ पर ऐड करने की आवश्यकता है आपको, तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये मुझे 1 into 1 मिला। अब हमको यहाँ पे 1 into 1 को जो है ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जो इसको डिवाइड करे यहाँ पे और उसको मैं ऐड कर दूं। यहाँ पर साइन प्लस है तो यू ऐड द फैक्टर्स, तो मुझे 2 मुझे मिल जाए। मुझे इसको 2 यहाँ पे लाना है, तो हम क्या करते हैं पहले हम इसको जो है 1 into सिंपली आप देख पा रहे हैं सर, अगर मैं इसको 1 1 को अलग कर दूं यहाँ पे, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मुझे 1 मिल जाएगा यहाँ पे, हमको 1 यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, मुझे अगर मैं 1 और 1 को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, हमको 2 यहाँ पर मिल जाएगा।
जो हमको रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करें यहाँ पे ना, हम इस 2 को जो है हम 1 + 1 के फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देंगे यहाँ पे इसको, हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे और सब में क्या करना है, सब में हम x यहाँ पर ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो हम इसको जो है हम ए लिख देंगे यहाँ पे। तो यू सी राइट हियर द सर x² प्लस हम इसको ए लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 1 = 0। देन यू मेक द ग्रुपिंग। सर आप इसमें ग्रुपिंग कर रहे हैं, सर आप यहाँ पे जो है दो की ग्रुपिंग कर लें यहाँ पे। यू मेक द ग्रुपिंग ऑफ टू terms. You see here then, sir x² x करें both the term only x is common. सर x यहाँ भी है x यहाँ भी है, हम x को यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। You get here the take common x, you get here x + 1 plus sir in this term sir there is no x common, only one common. Sir one is also here and one is also here. You take common one. Here remains your x + 1 = 0. Sir, first then here make the two terms, this and this. You also say here, sir, x + 1 is here and x + 1 is here. This term x + 1 is a common in the both term, this and this. Then you again the common, the x + 1. So you take here the x + 1 common and only remains the in bracket, sir x, हमने इसको यहाँ से कॉमन कर लिया, क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस here x + 1 कॉमन कर लिया, 1 बचेगा = 0। सही है ना, it is just like the product of two number = 0। मैंने by the जीरो प्रोडक्ट रूल से अप्लाई करके हमें पता कर सकते हैं, अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 आता है, it means that either this term = 0 or this = 0। then you see here x + 1 = 0 or x + 1 = 0, both are the same term। you get the value equal to x = -1 or x = -1। तो x = -1 is the solution of this equation। अगर ये क्या है हमारा सर x = -1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर आपको चेक करना है क्या है रियल में सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा सर, आपको इस इक्वेशन को इसमें पुट करना पड़ेगा। you put in this equation, then you get the answer। then the left hand side becomes equal to the right hand side, then this is the solution of this equation। it is clearly ये हमारा क्लियर हो गया कि इसका सॉल्यूशन है। आइए हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे जो कि क्या एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं। जो अगर हमको चेक करना है इसको जो तो पुट x = -1 in equation 1। आप x = -1 जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो फाइंड हो जाएगा x = -1 स्क्वायर ऑफ -1 प्लस 2 into -1 प्लस 1 = 0। तो स्क्वायर ऑफ माइनस टर्म इज 1। अगर नेगेटिव नंबर पर, ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर है पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा क्या आता है तो हमेशा जो है एक पॉजिटिव नंबर ही आता है। यहाँ पर नेगेटिव पावर इवन नंबर है, इट गिव्स द ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। द एनी पावर ऑफ 1 इज ऑलवेज गिव्स द 1। सर 1 पे पावर आप कुछ भी कर लीजिए, आप 2 3 4 लाख कर लीजिए आपने, इट ऑलवेज गिव्स द वैल्यू 1। दिस इज द 1 एंड 2 times 1 and plus times minus, plus into minus negative 2 times 1 2 1 2 plus 1 = 0। you see here the sir 1 and 1 are the same sign, means positive sign, then you add 1 plus 1 = 2, 2 minus 2 = 0, 0 = 0, it means that sir x = -1 satisfy this equation। the left hand side becomes equal to right hand side, it means that x = -1 is the solution of this equation। ये क्या है इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, क्लियर कर दें यहाँ पे। अगर यह इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब ये क्या है इसका सॉल्यूशन हमारा है। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे सर कि इसका सर रूट के बारे में। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट होंगे, और हम जो है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कोफिशिएंट और इसके रूट में क्या रिलेशन होता है, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं।